السلام علیکم جی. آپ سارے لوگ جو تشریف لائے آپ کا بہت شکریہ اس کولڈ ونٹری ایوننگ میں, اور آپ سارے لوگ جو دیکھیں گے آپ کا شکریہ, آپ نے وقت نکالا. اور عائشہ صاحبہ کا شکریہ, عائشہ سروری, ہر دل عزیز, ایٹم کیمپ کی اور اس بک آور کی, جنہوں نے ہمیں فکشن سے اور بہت ہی اعلیٰ ادیبوں سے روشناس کرایا ہے. تو عائشہ یہ بتائیے کہ سلویا پلیتھ کون ہے اور وہ کیوں مشہور ہیں اور کیوں ایک کلٹ فگر کے طور پہ جانی جاتی ہیں ابھی تک. تھینک یو سو مچ عمر, اینڈ تھینک یو ٹو ایٹم کیمپ. نوید صاحب بھی آ گئے ہیں, ان کا بہت شکریہ کہ وعلیکم السلام, ہر سنڈے ہم ایک مہینے میں فکشن کے بارے میں بات کرتے ہیں. سلویا پلیتھ ایک آرکیٹائپل وائٹ گرل ہے, اور وائٹ گرلس کو کافی دفعہ سوسائٹی میں ایسے دیکھا جاتا ہے کہ ایک تو ان کے کوئی مسئلے نہیں ہوتے, دوسرا یہ پریولیجڈ ہوتی ہیں, خوبصورت ہوتی ہیں, اور ان کو جو ملتا ہے وہ جو چاہتے ہیں وہ مل جاتا ہے. سو سلویا پلیتھ نے اس پوری متھ کو ڈی بنک کیا ہے بائی سینگ کہ سوسائٹی میں آپ کا جو آئیڈینٹی ہے وہ کبھی کبھی ویسے تو آپ فری ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے عورتوں کو حقوق مل گئے ہیں, اور پرٹیکولرلی وائٹ عورتوں کو تو بہت پہلے حقوق مل گئے تھے, ووٹنگ رائٹس ایکسیٹرا ایکسیٹرا, لیکن سوسائٹی کے لاز اور نارمز ان کو اتنا جکڑ کے رکھتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ وہ بیل جار کے اندر ہے, جو کہ ایک ویکیوم ہے اور وہ اس سے نکل نہیں سکتے, اور نظر تو آ رہے ہیں ان کو سب کچھ, اور وہ جا کے ٹرائی بھی کر سکتی ہے, لیکن بار بار جو ہے نا وہ جا کے اس بیل جار کے اندر دیوار کے ساتھ ہی ٹکرائیں گی. سو کیونکہ یہ ایک پوئٹ تھی خود سلویا پلیتھ, اور یہ کتاب کافی حد تک آٹو بایوگرافیکل ہے. اگر آپ سلویا پلیتھ کو جانیں تو زیادہ تر ان کے پوئمس سے جانی جاتی ہیں. ان کے پوئمس بہت وسرلی ڈیپ ہیں, خوبصورت ہیں. اور دوسرا ان کی شی از ویری فیمس فار میرینگ اور وانٹنگ ٹو میری ہیوز who was a Nobel Prize literature winner. اور ایکوزیشن لٹریری سرکلز میں یہ ہے کہ کیونکہ ہیوز نے ان کا دل توڑا تھا, تو دیٹ از وائی شی کمیٹڈ سوسائڈ. اینڈ دس بک covers essentially 5 general areas. The idea of purity, کہ پیورٹینیکل سوسائٹیز کیسے ہوتی ہیں, جیسے 1800s میں تھیں کہ عورت کو صاف ہونا چاہیے, پاک ہونا چاہیے, اور وہ ایک سوسائٹی کا, اس کے کندھوں پہ سوسائٹی کی اسٹیٹس ہے. دوسرا یہ کور کرتی ہے دی آئیڈیا آف ریبیلین, کیونکہ یہ شروع سے ہی پلیتھ جو تھی کیونکہ پوئٹ تھی تو اس کو کچھ آئیڈیاز ایکسیپٹیبل نہیں فیل ہوتے تھے, اور اگین وہ بیل جار کی شیشے کے اوپر جا کے ٹکراتی تھی, لیکن اس کو وہ ایکسیپٹنس نہیں ملتی تھی. سو سورٹ آف ہر سیریبرل آئیڈینٹی واز اہیڈ آف ہر ٹائمس. تیسرا اس کے اندر جو کانسیپٹ کور ہوتا ہے وہ مینٹل ہیلتھ کا ہے, ڈپریشن. شی اینڈز اپ ان این اسائلم, اور تھوڑی سی ہیومرس بھی ہے بک. It's lively. Yeah. So everybody's like, oh, Sylvia Plath is all about killing herself and suicide and stuff like that. But she has such an interesting take on the men that she dates, you know. اور وہ جو بندے ہوتے ہیں جو اس کے سوٹرز ہوتے ہیں, جو basically she also like every girl wants to settle down and marry, but then I think at some point she realizes this is a bad deal, and she decides کہ میں نے شادی نہیں کرنی. اینڈ وہ اس نتیجے پہ کیسے پہنچتی ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے. Obviously it also covers the theme of harassment and something very interesting which we call coercive control. So people don't necessarily say you can't do this, but you know that if you do it the consequences can be death. So because وہ بہت aware ہوتی ہے, اس کو understanding ہوتی ہے کہ مردوں کا اتنا کنٹرول ہوتا ہے, اور کچھ عورتوں کے تھرو بھی کنٹرول اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ شاید وہ جو چیزیں کرنا چاہیں وہ نہیں کر سکتی کیونکہ وہ مار دی جائیں گی یا ان کے لیے وہ بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی. سو اٹس اباؤٹ دیز 5 جنیرک تھیمس. آئی تھنک بہت اچھی یہ سمری ہے, لیکن میں ایک اور چیز بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آرٹ اور آرٹسٹ کو ویسے زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. تو آپ کے خیال میں جو کیا وجہ ہے؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ سلویا پلیتھ ایز این آرٹسٹ زیادہ مشہور ہیں زیادہ تر ایز اے آرٹ کے. تو ایز اے آرٹسٹ مطلب لائف, فار ایگزامپل آپ نے بھی کہہ دیا سوئسائڈ کی وجہ سے, اور سوئسائڈ بھی بڑی, بلکہ میں نے کسی اور کتاب میں بھی پڑھا
शायद मैल्कम ग्लैडवेल की किताब में या किसी और, कि वो जिस तरीके से उन्होंने सुसाइड की, वो स्टोव में अपने आप को स्टोव के अंदर जाके गैस के अपना सर जो है उसमें दे के और सारी खिड़कियां दरवाजे बंद करके, और उसके बाद फिर वो स्टोव चेंज हो गए और वो सारी, तो अब उस तरह से आप खुदकुशी नहीं कर सकते और दूसरे तरीके ढूंढने पड़ते हैं लोगों को। अब ये है कि वो जो एक लाइफ है, और 30 इयर्स ओल्ड, और जैसे आपने कहा वाइट गर्ल, और फिर एक ऐसे बंदे से उसकी शादी हुई जो कि पोएट लॉरिएट हैं उसके, ब्रिटेन के, और अपने ओन पे बहुत मशहूर हैं, और फिर अभी फेमिनिज्म एज ए एफर्ट नहीं आया, लेकिन फेमिनिज्म को किसी आइकन की तलाश है। सो फरीदा कालू हैं या प्लेथ हैं, तो वो एक आर्टिस्ट के तौर पे, एक सिंबल के तौर पे सामने आ गई। और चूंकि शी इज़ अ वाइट गर्ल, तो जो वेस्ट है उसको भी उसको एम्ब्रेस करने में कोई इतनी ज़्यादा हिचकिचाहट नहीं हुई। तो लेकिन जो आर्ट है उसको अगर हम देखें, तो मैंने जैसे ये किताब पढ़ी, और मैं तो ज़रा सर्जिकली अपनी तरफ से किताब पढ़ता हूँ, तो मेरा ये ख्याल है कि ये बहुत ही आला प्रोज़ है, इसमें छोटे छोटे जुमले हैं, और इट्स नॉट एट ऑल, जैसे अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, इट्स नॉट एट ऑल प्रिटेंशियस। अमूमन प्रोज़ के साथ एक बड़ा चैलेंज ये होता है कि वो बहुत प्रिटेंशियस हो जाती है, वो कोशिश ये कर रहे होते हैं कि हम यहाँ पहुँचे लेकिन असल में यहाँ होते हैं। हाँ, और वांट टू डू टू मच, लेकिन इसमें इतनी सादगी है और इसमें इतनी, इसका इतना असर है। और पोम्स मैंने अभी नहीं उतनी पढ़ी, मैंने एक दो देखी हैं। तो आप आर्ट को कैसे देखती हैं, और फिर उसका जो आर्टिस्ट से ताल्लुक है, और फिर उसका लाइफ से? एक बात आपने कही कि वेस्ट को इसको एम्ब्रेस करने में तकलीफ़ नहीं हुई, आई थिंक इसलिए बिकॉज औरतें और हिस्टेरिया को सॉर्ट ऑफ कंबाइन किया जाता है हर लिहाज से, कि अगर एक औरत है और उसके पास आइडियाज़ हैं, तो ये डेंजरस आइडियाज़ हैं, वो पागल हो जाएगी और मर जाएगी या तो मार देगी अपने आप को। दैट्स अ वेरी नाइस कंफर्टेबल कॉन्सेप्ट इन ऑल सोसाइटी के। देखिए इसीलिए जो है ना, थोड़ा लाइक लिमिट करो, ज़्यादा ना पढ़ाओ, ज़्यादा ना आइडियाज़ दो, बिकॉज डेंजरस होते हैं। And I think that she fits that stereotype perfectly, because sort of it's what happened जब वो realize करती है कि I have a mental health disorder। obviously ये लफ्ज़ तो नहीं वो यूज़ करती है, वो fig tree का एक metaphor यूज़ करती है। वो कहती है एक fig tree है, fig tree को उर्दू में क्या कहते हैं? फिग्स आर इंजीर की दरख्त, जो कि हर लिटरेचर में बहुत इंपॉर्टेंट मेटाफोर की तरह यूज़ होता है। तो कहते समझाती है कि वो मुझे, मेरा मसला क्या है। वो कहती है मैं ऐसी इंसान हूँ कि मैं फिग ट्री के नीचे बैठी हूँ, इंजीर की दरख्त के नीचे बैठी हूँ, मैं ऊपर देख रही हूँ और ये सारे फिग्स हैं, और मैंने यूरोप जाना है, वो एक फिग है, मैंने एक पोइट बनना है, वो एक फिग है, मैंने शादी या मुझे लव चाहिए अपनी ज़िंदगी में, दैट्स अ फिग, आई ऑल्सो वांट टू be independent, that's a fig। और फिर मैंने एक डॉक्टर भी, so it's like she says my problem is that I don't want one thing, I want to be everything। yeah, so she says the definition of neurosis or psychosis is that you oscillate between multiple desires or needs or dreams equally, and then you go mad because आपको समझ नहीं आती कि आपने प्रायोरिटाइज कैसे करना है इसको, राइट? सो शी टॉक्स अबाउट दिस। द अदर थिंग शी हैज सेल्फ अवेयर अबाउट, और अभी तो हमें पता है हर इंस्टाग्राम फीड के ऊपर मेंटल हेल्थ का तो कोई ओवर कॉन्वर्सेशंस हो गई हैं, बट उस ज़माने में वो एक और चीज़ कहती है। वो कहती है कि आई हैव अ प्रॉब्लम विद डिसअपॉइंटमेंट। वो कहती है कि मैंने बहुत जल्दी सीख लिया कि to be able to not be disappointed, you cannot expect anything from anyone. So as a result, I think mental health में सबसे important जो factor play करता है आपकी degradation का, वो community है। अगर आप एक दूसरे को trust ना करें, या अगर आपके close relationships में trust ना हो, तो फिर आप बहुत जल्दी downward spiral पे चले जाते हैं। She had very untrustworthy relationships, unfortunately। जो boys थे उसकी ज़िंदगी में, कुछ trustworthy से नहीं थे। And आपने suicide की बात की, and I, with your permission, wanted to read a paragraph that tells you, जो उमर बात करें ना कि प्रोज की खूबसूरती बहुत ज़्यादा है। I think this is page 150. She says, "It all looked like one hell of a mess. I rolled on my back again and made my voice casual. If you were going to kill yourself, how would you do it?" Cal seemed pleased. "I've often thought about that. I'd blow my brains out with a gun." I was disappointed. It was like a man thing to do with a gun. A fat chance that I had of laying my hands on a gun.
and even if I did, I wouldn't have a clue as to what part of me to shoot at. So she has this astute ability to go deep, and then the world around her is so harsh and stupid. मुझे वो एक लाइन में बार बार आते हुए पढ़ा था अभी कि उसमें ना when her friend dies, तो वो उसका उसमें हम मतलब डेथ को और कब्र को एक्सप्लेन करना बड़ा ही ज़्यादा आर्ट में कॉमन है. तो उसमें शी यूज द टर्म द शैडो मीट्स द शैडो, and it's so graphic. Yeah. So the shadow is when there is this hole, Yeah. there's a shadow, and then when the coffin is lowered, that's a shadow, and this is shadow meets Yeah. the shadow. मैं इसको थोड़ा सा जो हमारे साथी जिन्होंने किताब नहीं पढ़ी उसके लिए एक समराइज़ करूँ, और उसमें सवाल भी है मेरा कि ये जो कहानी है ये सिल्विया प्लैथ के कॉलेज से थोड़ा आगे की है, और सिल्विया प्लैथ कह लें या हीरोइन कह लें या जो भी फीमेल प्रोटैगनिस्ट है, तो वो जो हैं समवन जो कि अपने करियर में आगे जा रही है, जिसको स्कॉलरशिप्स मिल रहे हैं, बिग सिटी का चक्कर भी लगा लिया है, और उसके साथ फिर कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स भी हैं. डिसअपॉइंटमेंट में एक तो ये कि हार्वर्ड में दाखिला मिलना था वो नहीं मिला. उसके बाद जो बॉयफ्रेंड है हु इज़ अ कज़न टाइप, उसको कज़न ही कह सकते हैं, जो बेस्ट फ्रेंड का बेटा है, वो डॉक्टर है, वो बड़ा टिपिकल सा है. और जो वालदा हैं वो और जो वालिद हैं वो प्रोफेसर हैं, और वो चाहते हैं कि ये सेक्रेटरी बन जाए, शॉर्ट हैंड टाइपिंग सीख ले वगैरह वगैरह. स्टेनो बन जाए. और उसी दौरान में वो जो है फिर उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है, और उसको मुख्तलिफ साइकोलॉजिस्ट मिलते हैं जो अपने तरीके से ट्रीट करते हैं. शॉक थेरेपी होती है. फिर उसको एक बेनिफैक्टर भी मिल जाती है, कोई खातून जो कि इलाज को स्पॉन्सर कर रही है. फिर इलाज भी हो जाता है, और एंड पे वो कम से कम इस इलाज से ठीक हो जाती है. तो ये स्टोरी का टाइम स्पैन है. मेरा आपसे सवाल ये है कि जब प्लैथ ने ये नावल लिखा उसके कुछ अरसे बाद शी डाइड. Yeah, she killed herself. ओके, उस वक्त तक जाहिर है शी वाज मैरिड एंड हैड किड्स टू. Yeah. लेकिन व्हाई वुड शी स्टॉप द नॉवल एट हर लाइक कॉलेज डेज एंड नॉट टेक इट फर्दर? तो इसकी क्या वजह थी स्पेशली इसमें, इस सिनेरियो में? व्हाई वुड शी नॉट टेक इट? बिकॉज वंस यू आर टेलिंग योर ओन स्टोरी, आप अपनी कहानी बता रहे हो तो आप बताते चले जाते हैं. आप उसमें क्या है, आपने उसको मतलब आपको कहानी में तो आपको पता तो है कि प्लॉट है क्या, क्योंकि ये है बड़ा एग्जैक्ट, वो सारी चीज़ें बिल्कुल नाम बदले हैं, बाकी स्टोरी तो वही. स्टोरी वही तो है. आप अपनी कहानी बताते चले जाते हैं. तो आपका क्या ख्याल है, वो क्या शायद शी वांटेड टू राइट अनदर बुक, और मे बी 2 पार्ट्स में, और शी जस्ट वांटेड टू गेट इट आउट ऑफ द सिस्टम. और एक जगह मैं पढ़ा था कि इट्स बिकॉज ऑफ हर मदर, और मदर ट्राई टू स्टॉप इट द पब्लिकेशन एज वेल. एंड देन व्हाई वुड शी काइंड ऑफ क्यों करेंगी इसको किसी और नाम से? Yeah, she wanted not to be outed. हाँ. I think. हाँ. आउटेड. Yeah. व्हाई? पेरेंट्स के लिए? I think इसमें एक लाइन है उसकी माँ के बारे में specifically where she says कि my mother came to visit me when I was 20 and I was in the asylum, and I did this to her. I was a daughter in an asylum. So I think इसमें shame का बहुत ज़्यादा किरदार है, where the idea is that if you're sick, you brought it upon yourself. और उसमें जो उसका sort of like cousin relationship होता है पहले हाँ, वाला, वो जाते हो उसको कहते हैं कि हाँ, वो नाउ कहता है तुम बीमार, लाइक हर चीज़ साइकोसोमैटिक होती है. तो ये साइनस तुम्हारे साइकोसोमैटिक है, तुमने खुद ही बनाया है इनको. तुम जो बीमार होती हो तो तुम्हारे दिमाग का मसला है. और फिर उसको टीबी हो जाती है बंदे को. हाँ. तो फिर वो थोड़ा सा हंसती है, वो कहती है कि ये भी साइकोसोमैटिक ही होगा, तुमने अपने आप को टीबी दे दी. बट यू नो there's this entire conversation where she feels a lot of shame. and remember कि ये जो बॉस्टन का एरिया है जहाँ पे ये वेस्ली जाती है, और हार्वर्ड है, और येल है, और this entire pressure of social stratification के आपकी academic excellence आपको determine करती है कि आप successful हैं या नहीं, और therefore आपको स्टेटस मिलेगा या नहीं. यहाँ पे फॉर एग्जांपल डाउरी है, राइट? बट दैट वाज फॉर दैट जनरेशन, द डाउरी वाज लाइक हाउ फार द गर्ल हैज गॉन इन टर्म्स ऑफ व्हिच डिग्रीज एंड व्हिच यूनिवर्सिटीज. तो एक वो रीज़न है. और दूसरा, आई थिंक अगर एक पोएट अच्छा है या अच्छी है तो दे हैव वन स्किल व्हिच इज दे नो व्हेन टू स्टॉप टॉकिंग. एंड आई थिंक दैट जवानी को इनकम्पास करना और उसकी ऑलमोस्ट 18 to 21 years की लाइफ बयान करना is a good place to stop because it's so foundational. हमारी relationships हमें इतना impact करती हैं, अपनी ज़िंदगी में इतने खौफ create करती हैं
کہ वही काफ़ी है. अब जो आगे होगा वो वही होगा जो यहाँ हुआ है. I think. Yeah, that's a guess. और एक और चीज़ भी मैं सोच रहा था वो ये थी कि बिकॉज ये सारे पोइट्स हैं और पोइट्स जो ये सारे हैं पूरा ग्रुप है और एक दूसरे के साथ इनका राब्ता है. पोइट्री के अब जो पढ़ने वाले हैं बड़े कम हैं, फिक्शन के पढ़ने वाले फिर भी कुछ हैं. तो ये वाई वुड शी नॉट डिवोट मोर अटेंशन टू प्रोज एंड रादर पोइट्री के, क्योंकि दिस इज in its own form is a very effective and a beautiful piece as well. Why would she do that? I think वो क्या नाम था उसका जो बंदा है weird सा, बिली नाम है उसका जो पहला बंदा था. Yeah, Billy. हाँ, Buddy. Yeah, annoying white, हर annoying white Buddy boy का नाम Willard. Buddy Willard. So वो उसको कहता है कि what is a poem, you know, and she says I don't know what is a poem. And she's also very socialized to be a sweet girl, quiet, demure, तमीज़दार. कहती है तुम बता दो, तुम ही पूछ रहे हो, तुम बता दो. तो वो कहता है कि ये खाक होती है, it's dust. A poem is nothing, it's dust. And then she says कि मेरा मसला ये होता है कि मुझे जब कोई इस तरह की बात करता है, क्योंकि ये पोइट होती है, तो कहती है मुझे इतने महीनों के बाद मेरे दिमाग में मैं उसको जवाब देती हूँ कि ये तुमने मुझे कहा था, लेकिन तुम कैडावर्स को डाइसेक्ट करते हो. And cadavers are dust, and medicine is dust, and health is dust, you know, so therefore everything is dust. So how can you say that the one thing that explains the relationship of one thing to another, life to death, light to darkness. और वो उसके बाद खुद पोइट्री करने की भी कोशिश करता है, बड़ी बकवास सी, बहुत बकवास पोइट्री होती है उसकी. इवेंचुअली वो कहते हैं ये पढ़ो एक अखबार तो में, वो बकवास और वो भी एक कम्पेटिटिवनेस है ना. हाँ कि तुम करिए तो मैं भी जो हैं दो हमारे यहाँ भी है, अमेरिका में भी है कि द मेल्स हैव टू प्रूव देमसेल्व्स कि वो सबसे बेस्ट हैं. और टीम प्लेयर्स नहीं होते, you know. I think that's the one tragedy that we see in this white girl's life कि you know she gets to be told कि if you're smart you will be successful, and then she becomes smart and then she is penalized for being smart. उसको एक तरह से सोसाइटी पनिश करती है इंटेलिजेंट होने के लिए और उसको आइसोलेट करती है. हाँ, उसकी वजह ये भी है ना कि स्मार्ट और इंडिपेंडेंस को अलग देखा गया है. तो वो ये भी होगी वजह कि अगर आप स्मार्ट हैं तो आपको इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर आप इंडिपेंडेंट हुए तो फिर बाकी चीज़ों को बड़ा ख़तरा आ जाता है. जैसे हमारे यहाँ तो चीज़ों को खतरे में आ जाता है. आइडियाज़ होंगे तो पागल हो जाएंगे. हाँ, और उसके अलावा भी जो फैब्रिक है वो ब्रेक हो जाएगा, सिस्टम बैठ जाएगा, ये फैमिली हो जाएगा, सिस्टम्स टूट जाएंगे. हाँ जी. तो वो जो फैब्रिक है अच्छा मुझे इस पे बताइए जो उसकी माँ का किरदार है. अच्छा, मैंने इसमें एक चीज़ नोट की कि शी इज़ नॉट रियली काइंड ऑफ लाइक बैड टू हर मदर इन दिस. सो फिर उसकी सारी हालत का जिम्मेदार कौन है, जबकि फादर इज़ पास्ड अवे, सो मदर इज़ द वन हु इज़ सेटिंग इट. ये वो इलाज भी करा रही, ये भी कर रही. इसके अंदर एक बहुत मज़े का सीन है उमर, जहाँ पे ये गाड़ी में बैठी होती है और आई थिंक वन ऑफ द बॉयज़ जस्ट होल्ड्स हर हैंड एंड स्क्वीजेस इट, राइट. और प्यार से उसको हाथ पकड़ के उसको हाथ को स्क्वीज करता है. एंड देन शी सेज आई हैव ओनली बीन हैप्पी लाइक दिस व्हेन आई वाज 9 years old when my father took me to the beach. And she's like I just realized that I'm not happy. And जो भी सिल्विया प्लैथ को पढ़ता है वो ये ज़रूर रियलाइज़ करता है कि वो हर चीज़ को एक बहुत डार्कनेस के थ्रू देखती है और उसको खूबसूरत तो बनाती है, लेकिन दुनिया उसके लिए बहुत डार्क होती है. तो और आपने उसकी मदर का मेंशन किया. एंड देन शी सेज द अदर टाइम आई रिमेंबर इज व्हेन माय ब्रदर एंड मदर टुक अ पिक्चर इन द बैकयार्ड. तो मेरा ख्याल है उसकी माँ के साथ उसकी रिलेशनशिप रिस्पेक्टफुल तो है, लेकिन एक वर्ड होती है एपैथी, और उसका मतलब ये होता है कि आप जियो या मरो, किसी को कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा, राइट. एंड आई थिंक फॉर्मेटिव ईयर्स में अगर आपकी पेरेंटल रिलेशनशिप्स में वो पैशन ना हो कि माँ जो है ना जान देती है बच्चे पे या बाप जान देता है बच्चे पे, या यू नो लाइक दैट प्रोटेक्टिव लविंग एनवायरनमेंट, आप सारी ज़िंदगी आई थिंक उसको ढूंढते रहते हो, यू नो गोल घूमते रहते हो. सो आई थिंक देयर वाज दैट प्रॉब्लम इन हर लाइफ, जहाँ पे माँ ने शायद उसको इंटेंसिटी नहीं अलाउ की. और ये बहुत इंटेंस पोएट है, लाइक दैट्स द वन थिंग अबाउट हर कि शी इज़ टू मच, यू नो. अब
چونکہ اس میں ہے تو نہیں, لیکن ہم چونکہ سلویا پلیتھ کی لائف کو ڈسکس کر رہے ہیں, یو ہیو بین فالوئنگ دی ہسبینڈ ہو ڈزنٹ فگر آؤٹ ہیئر بٹ ہی جنرلی فگرز آؤٹ ان ایوری تھنگ ایلس, ٹیڈ ہیوز. یا ٹیڈ ہیوز, تو اس کے بہت ہی زیادہ ریسرچ ہے, بڑی کتابیں لکھی جا رہی ہیں, خاص طور پہ ابھی دوبارہ لکھی جا رہی ہیں. اور ایک اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں, ویسے کتنا اچھا ہوتا ہے یہ کہ سلویا پلیتھ جو ہیں, شی واز رائٹنگ ڈائری فرام لائک ایئر 8, سو ڈائری اور جرنل کہہ لیں, اور وہ سارے جو جرنل ہیں وہ ابھی پبلش ہوتے ہیں بار بار, اور پھر سارے لیٹرز پبلش ہو رہے ہیں. تو کوئی بھی آرٹسٹ جو ہے اس کے کسی نہ کسی حوالے سے نشان جو مل رہا ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ جو سلویا پلیتھ سن ہے, although in a later age but he also commits suicide. تو اب مجھے دو چیزوں پہ اگر ڈسکشن کریں, ایک دی ریلیشن شپ ود ہسبینڈ, لائک who was not was inhibiting to her in any way, then what would be the problem if you are an outsider? So what would be the problem? I think our definition of inhibiting is very interesting, اور اسی لیے ٹراما اور ابیوس اور مینٹل ہیلتھ میں یہ ضرور دیکھا جاتا ہے کہ آپ کو ایک دفعہ کسی چیز کے بارے میں ڈانٹ پڑ چکی ہے یا مار پڑ چکی ہے نا, آپ وہ دوبارہ نہیں کریں گے, یا آپ کریں گے تو بڑے ڈر کے کریں گے, اور آپ ساری زندگی یہ کام کر بھی نہیں سکتے. سو آئی تھنک وہ بہت دلیر تھی, بہت کریجس تھی, اور اس کو میرا خیال ہے شی اینڈڈ اپ ہیونگ ریئلی ٹیریبل انسیڈنٹس ان ہر لائف, جس کے اندر وہ اس نے انٹرنلائز کر دیا کہ یہ میرا فالٹ ہے. کیونکہ اگر آپ بار بار دیکھیں, جب وہ اسائلم میں ہوتی ہے تو وہ بلی, کیا نام, بڈی, سو فرگیٹیبل کیریکٹر ہے اس کا, بھول جائے انسان. بڈی ڈاکٹر ہے, اس سے نہ بھولے, ہر بندہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے. ہاں, اسپیشلی اس زمانے میں. تو وہ آتا ہے اس کو اسائلم میں ملنے کے لیے, اور اس کو کہتا ہے کہ ایک بات بتاؤ, وہ کہتی ہے کیا, تو کہتا ہے کہ وہ جول ہوتی ہے ایک اور اس کی فرینڈ, جون, ہاں, کہتے وہ بھی مر گئی, اب سے بھی خودکشی کر لی, تمہارے ساتھ میں تھا, تم بھی اسائلم میں ہو, تو میں مظلوم ہوں. ہاں, وہ اچھا وہ ری ایشورنس, آئی مین لائک یو وانٹ ٹو جسٹ بیک سلیپ دس گائے, بیکاز بیمار وہ ہے, تم اس کو ملنے آئے ہو اور تم اپنی ویلیڈیشن لے رہے ہو, یو نو. اینڈ سو دس از واٹ اے نارسسسٹک person and particularly male chauvinist toxicity does. It makes you think that you're entitled to being comfortable all the time, کہ آپ کو کسی چیز کی تکلیف نہ ہو, آپ کو کوئی انکمفرٹیبل نہ کرے. بے شک آپ نے ان کو انکمفرٹیبل کیا ہو, لیکن اگر وہ روئیں تو آپ انکمفرٹیبل, آپ روئیں نہ, آپ شور نہ ڈالیں. So I think that comes out and she really feels کہ میرے ساتھ جو بھی برا ہوا ہے میں نے ہی کیا ہے. تو وہ اس کو کہتی ہے نہیں آپ نے کیوں کیا کچھ برا, آپ تو اچھے ہیں, میں نے ہی کیا, ہم نے ہی کیا. So let's get to the difficult part, I would assume. That's the suicide. Yeah. اب ایک خاتون ہے جس کے 2 بچے چھوٹے چھوٹے, کتنی سال کے؟ I think 4 اور 3. So that خاتون, kind of lady of letters. Yeah. وہ ان کو کمرے میں سائڈ پہ بند کر کے, اور she takes her own life and dies. Yeah, in real life, not in the book. Yeah, in book she tries. Yeah. And in fails. In real life she's successful. So does that life deserve to be celebrated? So I have This is a contrarian question. I have a take on it, which is that دیکھیں mental health جو بھی جس نے بھی تھوڑا بہت انزائٹی سے سفر کیا ہے, اس کو پتہ ہے آپ کے you have one bad day, like normies ہوتے ہیں یا neurotypicals ہوتے ہیں, اور پھر there are people who are not neurotypical, right? Those who have suffered one bad day can deal with it because they have a system, a coping system جو کہ ان کو کھڑا کر دیتا ہے. فیل ہو گئے, ہاں ٹھیک ہے, اگلی دفعہ دے دیا, نقصان ہو گیا بزنس میں, you get back up, heart break ہو گیا, you get back up. The problem with anybody with a mental health disorder, اس لیے ہمیں تھوڑا سا sensitive ہونا چاہیے, is that they don't have the capacity to rebuild. ان کی وہ جو سیروٹونن لیولز ہوتے ہیں یا جو بھی ان کے ہارمونل چیلنجز ہوتے ہیں جس سے ہیپینس آتی ہے, جس سے آپ آسمان دیکھو اور آپ خوش ہو, یا آپ بچہ دیکھو تو آپ خوش ہو, یا آپ پپی دیکھو تو آپ خوش ہو, وہ ان میں ابیلٹی نہیں ہوتی. So they're not able to create community,
बिकॉज ट्रस्ट कम होता है, क्योंकि उनको हर चीज़ डार्क नज़र आती है और उनके पास रीबिल्डिंग की कैपेसिटी नहीं होती. और उस सिस्टम में आपका जो अथॉरिटी फिगर्स होते हैं, जैसे डॉक्टर्स, जैसे साइकाइट्रिस्ट, पेरेंट्स, अगर उसमें अब्यूज़ हो या उसमें कोवर्जन हो या उसमें कंट्रोल हो कि तुम मुझे अच्छे उसी वक्त लगोगे या प्यारे उसी वक्त लगोगे अगर तुम ये फॉर्मूलेक यू नो परहैप्स अचीवमेंट्स करो, राइट. और उसने समझाती भी है कि मैं यू नो आई स्टार्टेड बिकमिंग एफिशिएंट टू मेक अप फॉर माई पेन. सो आई थिंक वो गैदर नहीं कर सकी अपनी पीसेस को इन टाइम. लाइक आई थिंक शी हैड 365 बैड डेज, एंड बाय द टाइम शी वाज perhaps 20 something, वो उसने कोई 7-8 ज़िंदगियाँ जी चुकी थी वो. So she for her it was like there's no point in this. And there's so many people that I know who have not committed suicide because of Plath's description of it. Because उनको समझ आए कि यार this is us, this is me, this is what I feel, and it's normal and therefore it's a disease. Just because वो bleeding आपको नज़र नहीं आ रही उसका मतलब ये नहीं है कि हो नहीं रही. अब हम जब डिस्कस कर रहे हैं अबाउट मेंटल हेल्थ एंड एटसेट्रा, तो हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट होता है बेचारा या इस तरह मजलूम या गरीब का पिटी. हाँ, तो अब जैसे ऑन अदर नोट, जैसे अब क्राउन है ड्रामा, अब उसमें लेडी डायना जो है वो एक दफ़ा खुदकुशी करने की कोशिश करी. तो एक आम बंदा सवाल करता है कि ये जिनके पास सब कुछ हो वो उनको क्या मसला है. तो ये जो मसला है और ये क्या इसका कोई क्लास से कोई ताल्लुक़ है, या ये क्लास से मुबर्रा है, या ये क्लास में किसी जगह पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है. क्योंकि ये जो सारा सेटअप है इसमें तो एक अपर क्लास का एलिमेंट है, बल्कि उसमें वो एक सीन है जिसमें वो एक ब्लैक वो उसका अटेंडेंट है और वो उस पर हंस रहा है और उसको किक मार देती है कि ये क्यों हंस रहे हैं मुझ पे. So there's the and I like that because उस टाइम पे racism तो common थी, यही होता था. तो ये एक इसको किस तरह आप देखती हैं, ये अगर कोई इसको ये कहे कि ये क्लास ओरिएंटेड है या ये किस तरह एक जगह अपर क्लास का मसला है या लोअर का है या किसका है ये मसला? I think the only difference is कि सिल्विया प्लैथ ने एक ह्यूमन कंडीशन, क्योंकि वो पोएट थी तो क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जो सिल्विया प्लैथ की जो फॉलोअर्स हैं, क्योंकि सिल्विया प्लैथ इज़ अ कल्ट फिगर ना, शी इज़ अ कल्ट फिगर. तो वो उस जिस तरह वो मुख्तलिफ है ना, जिस तरह वो सोशल कम्युनिस्ट जो हैं उनका जो आइडियल है वो है ग्रामशी. तो वो ग्रामशी हैज़ अ काइंड ऑफ अ लाइफ, हैड अ काइंड ऑफ अ लाइफ जेल, और इस तरह वो उस तरह की फिर उसको रोमांटिसाइज करते हैं. जो हमारे वाले हैं कुछ जैसे भगत सिंह को करते हैं, तो वो इस तरह. तो अब ये जो उसकी फॉलोइंग है वो उसी तरह के ग्रुप में है, यानी कि स्पेशली द गर्ल्स हु आर कॉलेज एंड हु सीम टू हैव काइंड ऑफ एक्सेस और फिर डिसाइड नहीं कर पा रहे कि अच्छा क्या करें, वांट टू हैव ऑल. तो ये एक तो चलो मेंटल हेल्थ का तो एक प्रॉपर एक मसला है, वो तो किसी को भी हो सकता है, लेकिन उसके अलावा जो एक लार्जर डोमेन है उसमें मैं इसको दोबारा करता था. डू यू थिंक सिल्विया प्लैथ हैज समथिंग टू से फॉर अ पुअर गर्ल इन अफ्रीका? Absolutely. I think her humanity is very cross sectional. और मेरा नहीं ख्याल कि उसका गुर्बत से या उसका एक्सेस से ताल्लुक है, क्योंकि वो जो उसके पेन होती है ना, वो रिलेशनशिप पेन होती है. Like you know, when somebody breaks her heart, she feels bad. So you can have your heart broken even when you're poor, right? And you can then not have the ability to अपने आप को इकट्ठा करना मुश्किल होता है. तो आई थिंक ये फिनोमिनन्स क्लास के अक्रॉस है. फ़र्क सिर्फ ये है कि क्योंकि इसके पास सेल्फ अवेयरनेस थी, इसने बयान खूबसूरती से कर लिया कि ये आपके दिस इज़ व्हाट आई वाज थिंकिंग, यू नो, एंड दिस इज़ व्हाट हैपेंड टू मी. बट आई थिंक दैट हमारी खुद सोसाइटी में आई थिंक द सुसाइड रेट्स हैव ऑलवेज गॉन अप, एंड दे पर्टिकुलरली गॉन अप इन अर्बन एरियाज़. अगर आप उसको थोड़ा सा ट्रेंड देखें तो जो शहरों में लोग रहते हैं, आई थिंक क्योंकि वो नेचर से दूर होते हैं, उनके पास सिस्टम्स और सोसाइटी की कन्फिगरेशंस थोड़ी सी ऑफ होती हैं, सो
I think that you can feel her even as a girl in Africa. And I am a girl from Africa, by the way, so just saying. That's why I specifically said Africa. I didn't say South America. Yeah. नहीं, I do feel her, and I think बहुत खूबसूरती से express किया उसने. एक और चीज़ मैं इसमें जो देख रहा था, I think that is at the second layer. I just want your comment, और मैं अपना comment भी share कर दूँ. वो क्योंकि she is a literature student ना. अब वो लिटरेचर में भी शी फील्स बाउंड कि वो पुरानी चीज़ें पढ़ा रहे हैं, शेक्सपियर पढ़ा रहे हैं, जेम्स जॉयस पढ़ा रहे हैं और ज़ोर लगा, और जो क्रिएटिविटी है उसका मौका नहीं दे रहे. यानी फॉर एग्जांपल प्रोफेसर हैं और वो प्रोफेसर्स का एक ख़ास तरीका है उसमें. वो जो पूरा उसने बताया है कि उस इम्तिहान कैसे पास किए, तो वो एक पूरा एक फ्रॉड सा सिस्टम है जो कि मतलब इवन हार्वर्ड वगैरह में चल रहा है. और उसके साथ जो लोग क्रिएटिव हैं उनके लिए उस सिस्टम में कोई जगह नहीं है. मसलन उसकी जो एप्लीकेशन है शॉर्ट स्टोरी, वो हार्वर्ड वो रिजेक्ट कर देते हैं. तो ये भी एक पूरा एक यानी कि आप देखें एक इस्टेब्लिशमेंट होती है, जो एकेडमिक इस्टेब्लिशमेंट होती है, जिसमें एक ख़ास तरह के लोग जो हैं वो नज़र आते हैं. उसके अलावा जो प्रोफेसर हैं उनमें से वो भी हैरेसर टाइप हैं. उधर वो भी अब्यूज़ कर रहे हैं. तो ये जो एकेडेमिया की एक उसके अंदर जो नैरो माइंडेडनेस है उसको भी सेकंड लेयर पे मेरा ख्याल है बड़ा इंटरेस्टिंगली दिखाया है. और ये जो सारी राइटिंग्स हैं ये एक उससे भी लिबरेट करने का एक तरीका है कि ये जिस तरीके से कंपार्टमेंटलाइज किया गया कि अच्छा जी इस तरह की पोइट्री होगी, इस तरह की राइटिंग, और हम सोचते हैं सिर्फ हमारे यहाँ है, ये हर जगह है. हर जगह एक एकेडमिक इस्टेब्लिशमेंट होती है, एक इंटेलेक्चुअल इस्टेब्लिशमेंट होती है जो उसमें कोई डिफरेंट करता है, उसको जिसके गेट कीपर्स हैं वो उसको निकाल देते हैं और उसको फेंक देते हैं. तो ये भी एक इंटरेस्टिंग आर्गूमेंट है. कुछ ऐड करना चाहें एज ए मैसेज या इसको रैप अप करना चाहें? टेड ह्यूज, आई कीप सेइंग हार्वर्ड ह्यूज. टेड ह्यूज की एक नई बुक आई है जो उसने सिल्विया प्लैथ पे पोएम्स लिखी हैं. And you know, it really shows you that even in literature, the guy is just trying to have the last word. ठीक है, मर भी गई है वो, ठीक है, तुमने उसके साथ उसका दिल तोड़ा है, ठीक है, वो मर गई, मे बी तुम्हारी वजह से ना मरी हो, लेकिन it's always about, and literature is like, oh, you know, it wasn't really his fault and he really loved her, she was just sick. So I think ये स्टोरी है ना कि वाइट गर्ल पागल हो जाएगी अगर आइडियाज़ बहुत आएंगे इसके पास, और इसको कन्फाइन करो, इसको बंद करो एंड गेट कीप करो इसे बेसिकली. बिफोर सिल्विया प्लैथ लिटरेचर में कभी भी किसी औरत ने एवरीडे लाइफ को नॉर्मलाइज नहीं किया था. कॉलेज वाज नॉट समथिंग यू राइट अबाउट, राइट? इट वाज यू राइट अबाउट यू नो द प्लांटेशन स्लेवरी और that kind of thing, you know, gone with the wind nonsense. But with her, she really made it about, you know, how people treat each other when they have power over each other, how mothers treat you, and how basically you feel about yourself. तो इसने internalize angle को ना, camera angle को उसने अंदर I think किया. हाँ, मैं वैसे सोच रहा था, और मैं हमेशा सोचता हूँ जब भी मैं इस तरह की कोई पढ़ूँ कि हमारे इर्द गिर्द में ऐसा कौन सा किरदार होगा. तो हसीना मोइन, हसीना was I mean, she took it to the hospital. Like I think धूप किनारे में ये बहुत एक you know cute किस्म का relationship based commentary थी. I feel that. हाँ, लेकिन मैं उससे ज़्यादा रेडिकल शख्सियत आपके सामने पेश करना चाहता हूँ. चुगताई? नहीं, अमृता प्रीतम, except for the end. तो मैं दोबारा पढ़ा था जाके, एंड आजकल वो जिक्र है ना कि फलां ऋषि सुनक किधर से है, गुजरांवाला से. हाँ. तो पता नहीं ऋषि सुनक को गुजरांवाला का पता है या नहीं. गुजरांवाला को ऋषि सुनक ने एम्ब्रेस कर लिया कि हमारा बच्चा है. लेकिन अमृता प्रीतम जो है वो गुजरांवाला से थी और वो गुजरांवाला को काफ़ी ओन करती थी. अमृता प्रीतम की एक बहुत प्यारी पोएम है जो वाकई सिल्विया प्लैथ से मिलती है. आई थिंक पंजाबी में, मैं उर्दू स्पीकिंग में डेयर नहीं करूँगी, बट समथिंग अबाउट मैं तनु फिर मिलांगी. हाँ, इट्स वेरी नाइस एंड इट्स गॉट अ लॉट ऑफ सिल्विया प्लैथ इन हर. हाँ. और उसी तरह जो रिलेशनशिप्स थे जो साहिर के साथ, और जो फिर उसके साथ एक इंटेलेक्चुअल टेंशन है, तो और रिजेक्शन भी है, डिज़ायर भी है, और मेरा ख्याल है मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी, ऑल्दो शी लिव्ड अ लॉन्ग लाइफ. और दूसरी जो पोइटिस हैं वो भी इसमें नज़र आती, लेकिन उनका और है, वो थी आना अखमतोवा.
اور آنا اخمتووا واز اے رشین پوئٹس, شی واز جیلڈ ان سیکنڈ ورلڈ وار, اور اس طرح. تو یہ ہے کہ یہ محدود نہیں ہے کسی معاشرے تک یا کسی سوچ تک. یہ جو مسئلے ہیں اور یہ جو میک اپ ہے اور یہ ہر جگہ پایا جا رہا ہے, اور جو آرٹ کے اندر بھی اور آرٹ سے باہر بھی جو ایک خاتون ہے اس کو نہ کوئی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے اور نہ ہی اس کی بات کو سننے کے لیے تیار ہے. اس سیڈ نوٹ پہ ہم اپنا کنکلوڈ کرتے ہیں. آپ سارے لوگ اس کو پڑھیے. میں نے تو اس کو کئی حوالے سے, میں شکر گزار ہوں آپ کا, آپ نے مجھے یہ ریکمینڈ کیا. I'm so glad عمر کہ آپ اکنامکس سے ہٹ کے خواتین کی کالج لائف کے اوپر فوکس کر رہے ہیں. نوید صاحب بیٹھے ہیں ادھر, انہوں نے اکنامکس کی کتاب رکھی ہوئی ہے اگلے کے لیے, وہ بھی میں پڑھ لوں گا.